TunePocket.com. Good morning friends. Today we start our new session of chapter number 2 polynomials, lecture number 4 of class 10 NCERT syllabus. This video is related for English medium students. Now in our previous lectures we have studied the degree of polynomials as well as how to find the value of that polynomials at given value of variable. Now in just previous lecture we have watched how to find the zero of polynomials. We know that if any polynomials is given, we can find out the maximum zero of that particular polynomials. Let we revise that topic. If the given polynomial is linear polynomials, that means polynomials which having highest exponent or power of variable is 1. So its zero will be 1. Now for quadratic polynomials, the given if we consider this polynomial, it has the highest power is 2. So this type of quadratic polynomial having maximum 2 zeros, right? If the given polynomials is cubic polynomials, then its maximum possible zeros will be 3, right? Now here two examples are given. We now solve it, right? Now how to find the zero of given polynomials? First of all, we write here if p of x is equal to 3x minus 0. Now take p of x, polynomials of x in the term of x is equal to 0. So you will get the value of x at here. Now so 3x is equal to 6, therefore x is equal to 3. 6 divided by 3, that means 2. That means this one is zero of your polynomials, right? And you will get only 1 0, right? To draw, now we consider the second draw its graph. Now for draw its graph, we have to get more than 3 or 4 points, right? Now suppose we take one table x and p of x. Here we write x and p of x, right? Now take the value of x, you will get nearer its value. Now here we consider x is equal to 1, 2 and 3, right? अब क्या करना है फ्रेंड्स कि x की जो वैल्यू आई है वो आपको x की जगह यहाँ पर 1 लिखना है. तो आपकी पॉलिनोमियल्स p ऑफ x की जगह आपको x की जगह 1 लिखना है. दैट मीन p ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 minus 6. 3 minus 6, that means minus 3. Now if you take 2, then you will get 0. Why? X is equal to is your 0, and if you put the value of x is equal to in this polynomials, you will get always 0. Now for 3 into 3, 9, 9 minus 6, that means 3. Here you get 3 points on this type of coordinates. Here we write x, x dash, y and y dash. This is the origin, right? Now consider the points 1 and minus 3, 2 and 0, 3 and 3. 1 and minus 3. 1 is on x-axis and 3 is on y-axis. Here you will get this point 1 and minus 3. Now for 2 and 0, on x-axis you will get 2 and y-axis you will get 0. So this one is your second point 2, 0. Now for third point 3 and 3. This is your
last point. Now join these points. Now join these points. Here we'll get this one is your straight line, right? And you know that linear polynomials will always give straight line. This is your p of x, right? तो आप देख सकते हो कि आपकी p of x की जो लाइन है, जो मैंने यहाँ पर डिफरेंट कलर से मेंशन की है, वो कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है एक्स एक्सिस को 2 and 0. तो ये जो कोऑर्डिनेट हुआ आपका 2 and 0, उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा, x कोऑर्डिनेट क्या है आपका 2, दैट विल बी 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स. इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो p ऑफ x की लाइन जो है, ग्राफ है, वो x एक्सिस को, कार्टेशियन नियम के x एक्सिस को कहां पर टच हो रही, इंटरसेक्ट कहां पर हो रही है, वो उसके 0 हो जाएंगे. आप जानते हो कि लीनियर पॉलिनोम्स के अंदर 0 कितने होते हैं, ऑलवेज 1 ही होता है 0. तो आपको यहां पर एक ही बार आपकी p ऑफ x की जो लाइन है वो एक ही बार x अक्ष को इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब उसका ग्राफ जो है वो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो ये जो एग्जांपल था वो लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए था. नाउ व्हाट अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, राइट? तो लेट्स वी स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है आपकी p ऑफ x, उसके जीरो अगर फाइंड आउट करने हैं आपको, तो ऑलवेज यू हैव टू डू एंड वन थिंग, असाइन दैट p ऑफ x एज 0, राइट? तो आपको p ऑफ x को असाइन करना है 0 से. नाउ आप जानते हो कि यहाँ पर कैसे आप इसको फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. अब हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड करेंगे, यूज करेंगे. क्या करना है कि यहाँ पर क्या है, 6 है और यहाँ पर 1 है. तो 1 and 6 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दोनों नंबर प्लस में है तो मल्टीप्लीकेशन भी प्लस में ही आएगा. 1 into 6 दैट मीन्स 6 हुए. अब 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट करो. 6 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 3. अब क्या करना है आपको कि दोनों की वैल्यू जो आई आपको, वो दोनों नंबर आपको कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है, या तो आप नेगेटिव ले सकते हो, तभी उनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आएगा. लेकिन मान लो कि अगर मैंने दोनों नंबर को माइनस में ले लिया तो -6 -1 तो -7 हो जाएगा. अगर दोनों नंबर को मैंने प्लस में लिया तो +7 मुझे मिलेगा. लेकिन यहां पर मुझे जो चाहिए वो मिडिल टर्म्स वाली वैल्यू +5 चाहिए, तो वो दोनों केस के अंदर मुझे यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स 6 and 1 वाला जो फैक्टर्स जो था आपका वो कैंसिल हो गया. अब आप यहाँ पर आपके पास दो पॉसिबिलिटी, या तो दोनों नंबर को माइनस में लेंगे, दोनों को माइनस में लेंगे तो उनका मल्टीप्लीकेशन +6 मिलेगा. लेकिन दोनों का एडिशन करेंगे तो -5 हो जाएगा, वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों नंबर को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. 2 + 3 दैट मीन्स 5 हो जाएगा. तो दो फैक्टर्स हमारे कौन से हुए, 2 and 3. तो x के पीछे लगा दो इसके, 2x + 3x + 6 = 0. अब दो फर्स्ट 2 टर्म्स है, उनमें से x कॉमन निकालेंगे तो x + 2 मिलेगा. यहाँ पर 3 कॉमन निकालेंगे तो x + 2 = 0. Therefore x + 2, x + 3 = 0. Therefore x + 2 = 0 and x + 3 = 0. Therefore x = -2 and x = -3. इसका मतलब ये हुआ कि आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको मैक्सिमम 2 zeros मिलेंगे. तो ये दोनों जो हुए ना वो आपके 0 होंगे. x = -2 and x = -3. These are your zeros, right? तो ये जो है उसको हम ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना है आपको, तो प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने जो जैसा ही टेबल बनाया था वैसा ही कुछ टेबल हम यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे. और जैसे ही कैलकुलेशन हमने किया था प्रीवियस एग्जांपल में, वैसे ही हम कैलकुलेशन यहाँ पर करने वाले हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप जानते हो कि दो वैल्यू तो आपके पास पॉसिबल है ही. आप जानते हो -2 and -3 लेंगे तो उनका आंसर तो आपको क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है. तो -1 -2 -3 and -4. चलो हम 4 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं.
अब -2 एंड -3 की वैल्यू तो आप जानते हो क्या आने वाली है, 0 0 ही आने वाली है, तो वो तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। -1 जब लेंगे तो -1 जो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, 5 इंटू -1 दैट मीन्स -5 प्लस 6, 6 + 1 7 - 5 इज इक्वल टू 2, तो -1 की वैल्यू आएगी 2। -4 कंसिडर करेंगे तो -4 का स्क्वायर होगा 16, क्योंकि प्लस हो जाएगा। -4 इंटू 5 20 प्लस 6 22 -20 दैट मीन्स 2। अब हमें ये 4 पॉइंट्स मिल गए, जस्ट वी हैव टू प्लॉट इट ऑन ग्राफ, राइट। So this one is your x coordinate, your y coordinate, y dash और x dash coordinate है। अब -1 and 2, -1 on x axis and -2 on y axis, so you will get that point at here. This one is your -1 and 2. Now -2 and 0, -2 and 0, so you will get this point -2 and 0. -3 and 0, so you will get this point -3 and 0. -4 and 2, so you will get point at here. Here is your -4 and 2 points. Now join these points. Here you can check that the given graph is your parabola, right? And second thing, that graph is open at upward, right? तो ये चीज जो थी वो हम यहाँ पर देखेंगे कि अपवर्ड में क्यों ओपन हो रहा है। ग्राफिकली आपने तो देख लिया, प्रूफ भी देख लिया है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आपका जो जनरल फॉर्म जो है वो क्या है पॉलिनोमियल्स का, ax² प्लस bx प्लस c, इफ a इज ग्रेटर देन ओपन एट upward, and if a less than 0 open at downward, right? तो यहां पर a की वैल्यू क्या पर है, यहां पर 1 होगा, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ओपन कहां पर होगा, ओपन एंड पे होगा। तो आप देख सकते हो कि ओपन जो है वो अपवर्ड में हो रहा है, राइट। नाउ सेकेंड थिंग, वी नो अबाउट द मैक्सिमम जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 zeros, maximum 2 zeros, and here we get x coordinate of this -3, x coordinate of this point, you will get 2 zeros of given quadratic polynomials। मतलब कि ये आपका जो p of x का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो आपको जस्ट चेक करना है, कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है उतने ही जीरो आपको पॉसिबल है। तो ये जो था हमारा वो जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके साथ साथ कि ये जो जीरोस जो है उसके अकॉर्डिंग आप उसका जो पॉलिनोमियल्स का ग्राफ जो है वो कैसे डिराइव कर सकते हैं वो हमने सीखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस ऑन बेल आइकॉन, ताकि मेरे जितने भी यहाँ पर से वीडियोस अपलोड होंगे वो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।